Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is fractions and decimals. तो जब भी हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक होल पार्ट को एक होल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जस्ट लाइक एक एप्पल है, उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा और उसमें से हमने एक पार्ट लेके खा लिया या किसी को दे दिया. दैट इज आवर फ्रैक्शन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रैक्शन और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे. सो द फर्स्ट इज फ्रैक्शन. द numbers of the form a by b when a and b are the natural numbers are known as fraction. The number a is called the numerator, that the upper number, and the number b is called the denominator, that is the lower number below the division line. Okay, next is let's revise all types of fraction what we had discussed earlier. So here we are having first one is proper fraction. The proper fraction is the fractions having numerator less than denominator is called a proper fraction. So if you see numerator is 3 and denominator is 5. So we have numerator is less than its denominator. Next is improper fraction. The fraction having numerators greater than or equals to its denominator. If we look at this fraction, that is 3 by 2. So here we are having numerator is greater than denominator, and here we are having both are equal. So we call that improper fraction. Next we are having mixed numbers or mixed fractions. That is a number having a natural number part and a fractional part is called mixed number. Just like 4 is a whole number and 1 by 2 is a proper fraction. Clear? Okay, next we are having, for these are conversion of mixed number into improper fraction. Okay. Next come to our topic, that is equivalent fraction. Equivalent fractions are those fractions which have the exactly same value. लेकिन अगर आप उनको देखेंगे जैसे 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6 देखने में तो अलग अलग है, लेकिन if you solve them in the lowest form they will have the same value. Okay. So for equivalent fraction you can multiply the numerator and denominator by the same number, or you can divide by the same number in numerator and denominator to make it equivalent. आप कोई से भी यूज कर सकते हैं. Next is like and unlike fraction. Like fraction are those fractions which have same denominator, and unlike fraction are those fractions which have different denominator. So look here, the fractions having the same denominator are called the like fractions, and the fractions having different denominators are called unlike fractions. So here we are having 2 by 15, 4 by 15, 7 by 15. All like fractions, 2 by 5, 7 by 5, 11, 8 by 13 are all unlike fractions. So here we are having, we can change unlike fractions into, okay, next is comparison of fractions. Fraction with the same denominator, तो आपको क्या करना है, अगर हमारे पास denominator same है तो we will compare the numerators and decide which fraction is the greater or smaller. And if the fraction with the same numerator but different denominators, तो आपको क्या करना है, जिसका denominator बड़ा होगा उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, उतनी ही छोटी होगी. अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे 1 by 2 और 1 by 3, इसका डिनोमीटर छोटा है, इसका डिनोमीटर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी. तो वी विल पुट दिस साइन. क्लियर? ओके. देन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स. सो उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा. चलिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम तो सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो चलिए आगे देख लीजिए. ऐसी कुछ खास प्रॉपर्टी तो नहीं है, आगे चलते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल सी गिवन है. ओके, अगेन एग्जाम्पल. ओके, सो नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 2.1 मे बी. यस, दिस इज आवर एक्सरसाइज 2.1 and let's see what we are having. So the question number 1 says compare the fractions and put appropriate sign greater than, less than or equals to. So if we look here, so we are having this fraction in which
2 to the 4 प्लस 1 5/2, 4 to the 8 9/4। यहाँ पर आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया था दिस इज 2 to the 4 plus 1, दिस इज 5/2, 4 to the 8 plus 1 9/2। Okay, let's start solving it. That is 2 to the 4 plus 1, this is 5/2, and 4 to the 8 plus 1, that is 9/4। तो ये हो गया हमारा बॉक्स। अब देखिए 2 है, ये 4 है, इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 10 एंड 4। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने, देन उसके बाद कंपेयर करना है विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो वी विल पुट दिस साइन हियर। क्लियर? चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो लेट्स पिक सी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर्स सेम है एंड डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। तो हमें पता है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हम किससे स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट से, सॉरी हम स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट नंबर से और एंड करेंगे किस पे, स्मॉलेस्ट नंबर पर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सबसे जो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, दैट इज 4/2। देन इससे छोटा कौन होगा, 4/3। देन इससे छोटा कौन होगा, एंड ये हो गया 4/3 हो गया, देन 4/6। देन इससे छोटा कौन होगा, 4/7। इससे छोटा कौन सा होगा, 4/9। ठीक है, तो जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है इफ़ न्यूमरेटर आर सेम, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटी हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। ओके, लेट्स पिक दिस वन। इक्विवेलेंट भी होने चाहिए, लाइक फ्रैक्शंस भी होने चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं 17/21। सॉरी, here we are in 17/21, here we are having 19/7। तो हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो हो जाएगा 17/21 एंड दिस इज 19, 9 से 27, दिस इज 2, 3 1 3 4 5, 57/21। इसको करेंगे तो आपके देखिए यहाँ पर क्या हो गए, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Here we are having add the following. So next is question number 4, that is add the following. Let's pick question number C. So here we are having the same denominator, so we will take common 17. So here we are having 6 plus 3 plus 4, and this will become 13/17 as an answer. Clear? So come to our next question, that is question number 5. Find the sum. So let's pick C part. So here we are having these two fractions. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जो इसके होल नंबर्स हैं आप इनको अलग ले लीजिए, जस्ट लाइक दिस, एंड पुट अ प्लस साइन हेयर। सो हेयर वी आर इन 1/3 एंड प्लस 3/5। अब देखिए डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15। तो आप यहाँ पर इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, एंड यहाँ पर किससे करेंगे, 3 से। तो 5 1 5, 3 3 9, तो हो जाएगा 4 + 3 इज 7। चलिए इसको करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस दिस इज 14/15। सो आवर फाइनल आंसर विल बिकम 7 14/। देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से भी कर सकते हैं, आप इनको चेंज करके भी कर सकते हैं, जैसे हम सब्ट्रैक्शन के टाइम पर करेंगे। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जी, फाइंड द डिफरेंस एंड रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। देखिए लोएस्ट फॉर्म में ही हमें हमेशा आंसर लिखने होते हैं, ठीक है, चाहे आपसे बोला जाए या ना बोला जाए। चलिए तो इसमें स्पेशली बोलेगा तो हमें ज़रूर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 हो जाए 24 + 3, दैट इज 27/4, -5 to the 10 + 1 11/5। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। आई होप आप लोग एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता तो हाँ, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर से, तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जस्ट लाइक दिस।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 5 35, दिस इज 3, 7 to 5 to 10, दिस इज 30 -44. सो करेंगे 5 - 4 इज 1 एंड दिस इज 9/20, ठीक हो जाएगा 4। दिस इज 4 11/20 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। देन वी आर हैविंग सम वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस। लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, अभी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस होंगे तो आपको मेन फोकस इस पर रखना है, लैंग्वेज पर। जो लैंग्वेज में बोला जाएगा, जैसे बोला जाएगा, वही हमें यहाँ पर करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। So the question is, Dhruv spent 2 1/4 hours for completing his homework, while Sagar took 2 2/5 hours. Who took more time for completing the homework? तो किसने ज़्यादा टाइम लिया है, तो वो कैसे पता चलेगा? फॉर्टेशन करके। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, टाइम स्पेंट बाय ध्रुव, that is 2 1/4 hours. देन उसके बाद है हमारे पास टाइम टेकन बाय सागर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो दैट इज 2/5 hours. Who took more time? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम के लिए बोला गया है, तो इनको चेंज कर लेते हैं। तो दैट इज, इसको ले लेते हैं 4 2 8 + 1 9/4 एंड वी आर इन 5 to the 10 + 2 is 12/5। अगेन यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 5 और 4, फिर से को प्राइम नंबर्स आ गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 5 एंड यहाँ पर हम इससे कर देंगे 4 से। तो here we are having 9 5 are 45/20 and here we are having 12 4 are 48/20. So which one is, this one is the greatest number. ठीक है, so who took more time? So we can say that Sagar take more time than Dhruv. So इसको साइड में कर देते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, Sagar took more time than Dhruv. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पर। चलिए, बाकी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस में आप क्या करेंगे? अब अगर आप होल नंबर की फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करें तो आपका जो होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे? न्यूमरेटर से। ठीक है, अब केस 2 में क्या है? अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी, ठीक है, व्हेन फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, तो आप क्या करेंगे? सेम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। द थर्ड केस इज व्हेन द फ्रैक्शन इज मिक्स फ्रैक्शन, तो आप उसको क्या करेंगे? पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये तो हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ। तो अभी देखिए, हम ऑफ की बात करते हैं, इट इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन। जस्ट लाइक रानी हैड 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट गीता हैड। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? मल्टीप्लिकेशन साइन। क्लियर? चलिए, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, डिवीजन। ओके, हियर वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में हमें बस ये ध्यान रखना है, जो जब भी हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन का साइन रखेंगे, तो सेकंड फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाता है। एंड जो डिवीजन का साइन है वो किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 5 / 2/3।
तो सेकंड स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि 5 तो एज इट इज रहा है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन साइन हो गया और ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक 3/2। क्लियर। चलिए इसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं है, डिवीजन ऑफ ऑल नंबर, ये तो चलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 2.2 पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास बी पार्ट है दैट इज 4/5 और 6, तो इस पार्ट को ले लेते हैं। दिस इज 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, तो आपको क्या करना है, इसे 1 ड्रॉ कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। न्यूमरेटर हम लिखो मत लिखो, सेम थिंग। तो आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करोगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो हो जाए 6 4 24/5 इंटू 1, आप करेंगे दिस इज 24/5। अब आप इसको इसमें चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक 4 5 are 20 प्लस 4, तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अब इन्होंने बोला 5/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 10 लीटर, तो आप सॉल्व करेंगे तो 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे तो 5, सो दिस इज 5 5 25/4 लीटर, तो 6 4 24 प्लस 1/5 लीटर। ठीक है, तो आपको सिंपल ऐसे ही सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग 3 1/4/2, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 3 4 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको करेंगे तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा, 13 2 26 डिवाइड बाय 4, तो आ जाएगा 6 4 24 प्लस 2, दैट इज 26 आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पर हमें 2 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब भी आपके पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करनी है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आप उस हिसाब से उनको डिवाइड कर सकते हैं, बट इसमें तो यहाँ मुझे कुछ लग नहीं रहा है, जैसा 3 6 18 एंड 11 5 55 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 दैट बिलोंग्स टू डिवीजन पार्ट। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, जी पार्ट। ओके, यहाँ पे करेंगे दैट इज 5, ये डिवीजन साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम कर 7 3 21 4 25/7। तो अभी के लिए तो उसको चेंज करना था, तो हम इसको डिवाइड ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवीजन साइन। अब इसको करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7/25, तो डिवीजन के लिए क्या, अगर हमने मल्टीप्लाई और ये जो फ्रैक्शन था उसको किस में चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल में, तो 5 1 5 5 5 25, तो हो जाएगा 7/5 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, समीर परचेज दिस नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, तो जब भी परफॉर्म टाइप क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, लैंग्वेज पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं अपने स्टेटमेंट फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जस्ट लाइक लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीड, जो कि हमारी है 12 1/2 मीटर। देन उसके बाद जाते हैं हम ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, जो हो जाएगी हमारी 10 3/4 मीटर। एंड देन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया
ऑफ फील्ड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 12, 1/2 मीटर इंटू ब्रेथ इज 10, 3/4 मीटर। ठीक है, दैट इज 12 to 24 प्लस 1, दिस इज 25/2 मीटर इंटू यहाँ करेंगे तो 43/4 मीटर। यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, एंड मीटर इंटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर रफ में। तो दिस इज आर 1075/8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज QRD होता है। दैट इज क्वेश्चन इज 134, रिमाइंडर इज 3 एंड डिवाइजर इज 8। दैट इज आंसर एंड दिस इज मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है एंड दैट्स इट। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, तो अब आ गए हम अपने डेसिमल पार्ट पर, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेसिमल्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जब एक डेसिमल नंबर होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम एक नंबर लिखते हैं, देन डेसिमल लगाते हैं, देन उसके बाद एक और नंबर लिखते हैं। तो ये जो डेसिमल की जो लेफ्ट साइड नंबर होता है दैट इज अ होल पार्ट एंड दिस इज आवर होल नंबर, और जो राइट साइड होता है दैट इज अ डेसिमल पार्ट, दैट इज अ डेसिमल नंबर। तो चलिए इसका एक प्लेस वैल्यू चार्ट देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, lakh। राइट हैंड साइड में देखेंगे दैट इज 1/10, 100 एंड 1000। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ध्यान से फिर से हमारे पास ऐसे ही चलता रहेगा। तो यही प्लेसेस हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं दैट इज नंबर इन डेसिमल फॉर्म जस्ट लाइक 857.46। तो डेसिमल पार्ट को आप क्या करेंगे, 4, 6 इंडिविजुअल नंबर की तरह ही काउंट करेंगे, ना कि 46 की तरह। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लिस्ट वाली चार्ट में दैट इज हंड्रेड्स, टेंस, वंस, 1/10, 100, इसमें ध्यान दीजिए THS लिखा हुआ है। ठीक है, हमें ऐसे ही करना है। देन उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर आता है जस्ट लाइक डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं कि आपने देखा कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं आपके पास, दैट इज 3। तो हो गया 3 डेसिमल प्लेस। अगर 2 डिजिट्स होती तो 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल वो डेसिमल्स होते हैं जिसमें आपके पास सेम डेसिमल प्लेस होता है। ठीक है, और अगर आपके पास जैसे यहाँ पर 3 है, ये भी कितने हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट इज अनलाइक डेसिमल्स। तो अनलाइक डेसिमल्स में हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जस्ट लाइक दीज 2 एंड दीज 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास नोट। अनलाइक डेसिमल्स लाइक 0.5, 0.50, 0.50 आर इक्वल, हमें बस क्या करना होता है, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल चेंज करने के लिए बस 0 ऐड करना होता है। ठीक है, देन आता है कंपैरिजन, एडिशन। तो चलिए तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ओके, लेट्स कम टू एक्सरसाइज दैट इज 2.3। यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 2.3 for क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज राइट डेसिमल पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी पार्ट। देखिए डेसिमल पार्ट के लिए बोला गया तो हम तो सीधा यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं जस्ट लाइक 0, 2, 3। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। तो चलिए हम यहाँ पर सी पार्ट ले लेते हैं। अब फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, ओके फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप इसको डेसिमल को 10 लाइक लिखेंगे। अब देखिए इस डेसिमल घटाएंगे, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 1, और कितने प्लेसेस थे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आप 2 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उसको 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो दिस इज 5 2 ज़ा 10, 0। देन अगेन 5 कॉमन फैक्टर है तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 50।
This is 43/4. Clear? That is our answer. Next, we are having question number 2 here, question number 3. Convert the following fractions into decimals. Let's pick B part. चलिए पहले इसको चेंज कर लेते हैं. जस्ट लाइक 7 4 20, 20 and 30, 31/4. अब देखिए, या तो आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में करिए या फिर आप इसके डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल में चेंज कर दीजिए. अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 25 से कर दूँ और उसी नंबर की मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो हम कर ही सकते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिस इज 100 एंड दिस इज, यू हैव टू मल्टीप्लाई. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 775. अब क्योंकि हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है तो नीचे हमारे पास कितनी जीरोस है? 2. तो ये हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस 7.75. ठीक है, और यहाँ पे 3 होती तो हम क्या करते? 0.775 करते. चलिए उसके बाद आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4. कन्वर्ट द फॉलोइंग टू अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. ओके, तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस पार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? इनको अरेंज करेंगे एक सीक्वेंस में, जस्ट लाइक दिस. ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, राइट पार्ट राइट में होना चाहिए, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में. अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितना है? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. तो अब बाकियों में 3 डेसिमल प्लेस लगेंगे बाय पुटिंग 0. तो ये सब क्या हो गए? लाइक डेसिमल्स. क्लियर? तो बस आपको 0 ऐड करना था. नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग लाइक डेसिमल्स इनटू अनलाइक डेसिमल्स. तो चलिए यहाँ से ये पार्ट ले लेते हैं हम. ओके, तो देखिए यहाँ पर है 63.500, दैट इज टू 65.250. देन उसके बाद आता है 50.526. अब आप लोग यहाँ पे इनको अनलाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए बोल रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गया? अनलाइक डेसिमल. चलिए मैं इनको रब कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 डेसिमल प्लेस, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 डेसिमल प्लेस. क्लियर? चलिए अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो हमें क्या बोल रहा है देखते हैं. एट द फॉलोइंग. ओके, तो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर सी. ओके, here we are having 720 पॉइंट. अब देखिए सबसे पहले आप उसको अरेंज करना है प्लेसेस के अकॉर्डिंग. डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, जो राइट में लिखा है वो राइट में लिखिए, जो लेफ्ट में लिखा है वो लेफ्ट में. ठीक है, और जहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं दिखता आप डेसिमल के बाद वहाँ पर 0 ऐड कर सकते हैं. हालांकि इधर भी कर सकते हैं बट स्टिल. चलिए देन इसके बाद ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज 7. यहाँ पर करेंगे तो 11 कैरी 1, 12 13 कैरी 1, 2 + 1 दिस इज 3, 3 4 5 6 7 एंड 7 + 6 इज 13. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन. नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफरेंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द डिफरेंस. तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर डी पर. डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको जो ग्रेटर नंबर है वो पहले लिखना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, एंड स्मॉलर नंबर को हम बाद में लिखेंगे, जस्ट लाइक दिस. ओके, अब आप उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. चलिए तो ये हो गया हमारा 0. तो 0 - 5 वी आर हैविंग नथिंग, बट यहाँ पर हमें कैरी करना पड़ेगा. दिस इज 5 + 10. तो 5 - 3 is 2, 2 - 1 is 1, then decimal 5 - 3 again 2, 8 - 2 is 6, 4 - 1 is 3, 3 - 2 is 1. क्लियर? चलिए तो यह 1662 डेसिमल पॉइंट
125। चलिए उसके बाद आते हैं कंपैरिजन पे। देखिए सबसे पहले आपको होल पार्ट को कंपेयर करना है, देन उसके बाद हम किसको करेंगे, डेसिमल पार्ट को। आप ऊपर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं पहले, ए पार्ट। जस्ट लाइक 2 2, देन डेसिमल के बाद 3 3, 0 0, 3 3, पर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर क्या होगा, 0। सो दिस वन इज ग्रेट। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं और क्या क्या बने यहाँ पर। चलिए टेबल्स के बने, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर बाय 10, 100, 1000 की बात कर रहे हैं तो हम उतने ही डेसिमल प्लेस क्या करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगी तो डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 1 प्लेस। इफ यू मल्टीप्लाई बाय 100, decimal point is shifted to the right by 2 places. When decimal number is multiplied by 1000 and the decimal point is shifted to the right by 3 places. Okay, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय होल नंबर्स। तो चलिए फर्स्ट स्टेप पर आते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर बाय द गिवन नंबर इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट, एंड देन हम उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस को काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके एग्जाम्पल्स तो कोई बात नहीं, अब आ जाता है अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 2.4। चलिए यहाँ से पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप पिक करेंगे दैट इज के पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट इज 1.53 मल्टीप्लाई बाय 1000, 3 डेसिमल प्लेस 153 एंड 000। अब ये 2 डेसिमल प्लेस है तो 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, 1530। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं सी पार्ट। देखिए यहाँ पे एक डेसिमल नंबर है और एक होल नंबर है, तो आप बस सिंपली अरेंज करें, डेसिमल को भूल जाएं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो 0 को तो हटा ही देते हैं पहले। चलिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 12 9 2 0। अब कितने डेसिमल प्लेस थे, 3 डेसिमल प्लेस है हमारे पास यहाँ, तो उतने डेसिमल प्लेस पे क्या लगा देंगे, डेसिमल 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 2.925। क्लियर? चलिए अब उसके बाद देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर्स आ चुके हैं सब डेसिमल्स में। ठीक है, तो 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, तो चलिए हम उनको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे 3.5 है, 1.15 दैट इज 2.2। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जस्ट लाइक 3.5 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 1.15। तो चलिए यहाँ पर करेंगे जस्ट लाइक 3.5 मल्टीप्लाई 2.2, हो जाएगा 70 0 70, ऐड करेंगे तो 770। अधिक 2 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 7.70 इंटू 1.15। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 115 मल्टीप्लाई बाय 77 करेंगे तो 7 5 35, दिस इज 3। So our answer is 8855। अब देखिए 2 डेसिमल प्लेस ये, 2 डेसिमल प्लेस ये, तो आप कितने से पहले पॉइंट लगाएंगे, 4 डेसिमल प्लेस, तो 1 2 3 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.8855। क्लियर? तो बस आप पैसे मल्टीप्लाई करनी थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ दिस देन व्हाट यू हैव टू डू। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का आंसर ये होना, बस यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हैं। ठीक है,
तो अगर आप इस पार्ट को देखें, डी पार्ट को देखिए, 20426 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड यू विल हैव 225016। अब यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है तो 1 2 3, तो 0 से पहले क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल। क्लियर? तो इस टाइप से यहाँ पर हमें सॉल्व करना था। चलिए उसको यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम से बने कुछ यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। बस क्वेश्चंस में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप किस टाइप से इनको सॉल्व करेंगे, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट्स इट। बाकी तो ये सिंपल ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आता है, let us find the cost of 15.1 kg rice if the cost of 1 kg rice is this. Okay, so cost of 1 kg rice जो कि हमें गिवन है 24.25। हमें कितनी केजी का प्राइस निकालना है? इतना। तो यहाँ पर लिख दें कॉस्ट ऑफ 15.1 kg राइस। तो यहाँ पर कहेंगे 24.25 मल्टीप्लाई बाय 15.1। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, दैट इज 24,25,151। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसका डेसिमल में चेंज कर लेंगे। So our answer is 366,175। ओके, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आया था आंसर। तो एक्चुअली अब क्या करना है, हम इसको डेसिमल में चेंज करना है क्योंकि हमारा आंसर किसमें, डेसिमल में है। चलिए तो यहाँ पर रुपीज़ का साइन लगा देते हैं। देखिए 2 डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस टोटल हो गया 3 डेसिमल प्लेस। तो प्राइस हो गया 366 रुपीज़ एंड 175 पैसे। क्लियर? चलिए उसके बाद और देखते हैं क्या गिवन हमें यहाँ पर, दैट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10 100 1000। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आर एक्सरसाइज, दैट इज 2.5। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट। जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आप क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, राइट साइड शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 9.69 डिवाइडेड बाय 10। तो ये किधर होगा, एक जीरो से लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो हमारा फाइनल आंसर है 0.969 एज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर 2.5 हो गया। नेक्स्ट वी आर हैविंग some questions. So again we are having 167.3 divided by 1000। अब देखिए 3 डेसिमल प्लेस है तो ये 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा लेफ्ट वर्ड साइड, तो ये हो जाएगा 0.1673 एज आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द क्वेश्चन। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको दो डेसिमल प्लेस दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, इसका राफ में तो नहीं, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, जस्ट लाइक 11.13 डिवाइडेड बाय 0.21। ये भी 2 डेसिमल प्लेस है तो उसको हटाएंगे तो डिनोमीटर में 120 आ जाएंगे, और डिनोमीटर में डेसिमल रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब आपको करना है 1113 डिवाइडेड बाय 21। तो चलिए इसको रफ में डिवाइड कर लेते हैं।
सो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया जस्ट लाइक 53. सो आवर आंसर इज 53. क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आप चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है. तो ओके, लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 8. ओके, तो यहाँ पर आता है 73 बैग्स ऑफ सीमेंट, वेट इज दिस, फाइंड द वेट ऑफ 100 बैग्स. तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसा कुछ आता है, एक क्वांटिटी गिवन होती है, देन आपके पास एक अनदर क्वांटिटी का और पूछा जाता है, तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ वन प्रोडक्ट, देन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. क्लियर? तो यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज 73 बैग्स ऑफ सीमेंट वे दैट्स मच. तो सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट इज statement, weight of 73 bags, that is 4006.25 kg. Now we have to find out weight of okay, so we have to find out the weight of one bag. So we have to divide them. By 73. तो देखिए, आप लोगों को डेसिमल में डिवाइड करना आता है, आप डिवाइड कर सकते हैं. तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट फोन से कर देता हूँ. दैट इज 56.25 kg. क्लियर? तो आप क्या करेंगे, अब हमारे पास एक बैग का वेट आ गया और हमें कितना चाहिए, 100 बैग्स का. सो वी हैव टू फाइंड आउट वेट ऑफ 100 बैग्स इक्वल्स टू 56.25 इंटू 100. तो ये हो जाएगा हमारे पास 5625 kg. सो दिस इज आवर आंसर. तो आपको इस टाइप से कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है एंड देन उनको सॉल्व करना है. क्लियर? चलिए और देखते हैं और क्या गिवन है हमें यहाँ पर. Okay, so our topic is finished. So I hope you all have learned all the topics here. So you have to practice it and जितना हो सके उतना आपको इसको सॉल्व करना है, इससे हम आगे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें. So see you in next video. Till then, all the best.